Okay. Okay. So first of all, try to understand the meaning of a polynomial and the equations. Okay. See, linear polynomials, okay, then quadratic polynomials, okay. Acha, fine. So tell me one thing, do you understand the meaning of a equation and polynomials? Yes, sir. Acha, what do you mean by that? Sir, we simply say that the polynomials are not equal to any. We can say that equations are equals to. Okay, fine, good. There Equation. is a See, a simple statement लिखा हूँ, okay? Equation obtained by taking the value of a polynomial 0. Okay, whatever the polynomial is given, we taking equal to 0, that polynomial become a equation. Okay, so look here, suppose we have here linear 5x plus 9 and we have 3x minus 7. These are linear polynomials, right? So what is linear equation? 5x plus 9 is equal to 0. Yes, 3x minus 7 equal to 0. Did you get meaning of polynomial? And so suppose we have here quadratic x cube plus 3x minus 5, then 3x minus 5x. Sir, how x cube is quadratic equation, sir? It is square. So these are the quadratic polynomials, right? And suppose quadratic equations is what? X square plus 3x minus 5 equal to 0. Is equal to 0. Minus 5x equal to 0 and 5x is equal to 0. Got it? So I think so it is clear what is the meaning of a polynomials and what is the meaning of a quadratic also equations. Okay ना? Clear ना? देखो इसमें बहुत बच्चों को गड़बड़ हो जाता है polynomials और equations में. Equations का मतलब जो भी polynomials आप equal to 0 लोगे वो polynomials बन जाएगा either linear या quadratic या cubic, whatever जो भी होगा उसका डिग्री. Okay? Why this is linear? Because degree 1. This is linear equation because x degree 1. Here degree of x 2. That's why it become a quadratic equations. Okay. अच्छा ठीक है, मैं कुछ जनरल स्टडी लूंगा यहाँ पे, कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ मैं. ओके, क्या मैं आप कर देता हूँ, राइट? बहुत बेसिक चीज हम पहले कवर कर लेते हैं, छोटी चीजें, फिर देन वी गो टू द सम्स. इजी, इसका डिफिकल्ट नहीं है. अच्छा, टेल मी व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सपोज वी हैव ax square bx plus c equal to 0. Right now, Yes, sir. is called standard equation. Correct ना? Right ना? अच्छा, अभी देखिए standard equation जब होगा तो but when we say that this equation is quadratic equation, उसमें कुछ कंडीशंस है. क्या कंडीशंस है बाबा? तो फर्स्ट कंडीशंस क्या है? लुक हियर. कंडीशंस क्या होता है? a b c are real number. क्या होना चाहिए? a b c are real number and a cannot be equal to 0. a cannot be equal to 0. आपको पूछा जा सकता है, वैसे आपको डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जहां पे लिखा जाएगा कि a b c are real और ऑप्शन में होगा a is equal to 0, a suppose a equal to 0, a not equal to 0, b is equal to not equal to 0, c is not equal to 0. ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, राइट ना?
वहां पे कुछ भी रहने दीजिए, वैल्यू ऑफ ए बी सी, कुछ वैल्यू ऑफ बी और सी कुछ भी रहने दीजिए, राइट। सपोज बी का वैल्यू 0 आ गया, सी का वैल्यू भी 0 आ गया, नो प्रॉब्लम। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है ना? क्लियर? Yes. ओके, सो लुक हियर, सपोज सेकंड चार्ज समझ के लेना है। देखिए मैं इसको डिटेल्स में लिखता हूं, मैं यहाँ पे ax square plus bx plus c is equal to 0. If b is equal to 0, then Yes, sir. then we have what? Ax square plus c equal to 0. This is also quadratic equation. Okay, c is equal to 0, then ax square plus bx is equal to 0. This is also quadratic equation. Okay ना? Clear ना? तो हर quadratic equation में conditions कब होगा? देखो b equal to 0 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but a cannot be equal to 0. आपका c भी 0 होता है फिर भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं, but a cannot be equal to 0. ओके, और ये दोनों तो कंडीशन तो होगा तो चल जाएगा, ठीक है? ये समझ में आ चुका आप लोग को या सुनो? Yes, sir. यस, ओके। Yes. ओके, अच्छा, व्हाट इज एबीसी? व्हाट इज एबीसी? ABC are coefficients, sir. quadratic coefficients. Quadratic Yeah. coefficients. Okay, clear? चलो, well good. Fine. Okay, मैं कुछ बेसिक थ्योरी कंडक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा, what is root of the equations or solution? Suppose, sir, delta t is equal to 0. There are it's real and equal. ना वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, आप लिखते हो ना रूट ऑफ द इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक में कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2 variables. वेरिएबल्स होते हैं? हाँ जी, कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2 variables. 2 वेरिएबल्स। अच्छा, कौन कौन? अरे आप गलत आंसर करो, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं। हाँ बोलो, अरे गलत बोलो आंसर बच्चे लोगों। ओके फाइन, देखिए ओके, लुक मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ। ax स्क्वायर प्लस b ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, az स्क्वायर प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0, aq स्क्वायर प्लस bq प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? सिंगल है, x ही है। इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही है। इसमें कौन वेरिएबल है? y is a variable, here z is a variable, here q is a variable. ओके, क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपका वन वेरिएबल होता है, ओके, एक ही वेरिएबल होगा, पर उसका डिग्री कितना होगा? हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, गॉट इट? ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? आप जब रूट्स बोला जाता है आपको, सी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। वो क्या है? value of that variable, मैंने clearly लिखा आपको, okay? The value of the variable which satisfy the equation are called the solution or the root of the equations. ये आपको एक वन लाइनर वाला आ सकता है, पूछा जा सकता है आपको, वन लाइन वाला, ओके ना? राइट? देखिए एमसीक्यूज में ना एक बेसिक खासियत क्या होती है पता है क्या? हमें बहुत बेसिक चीजें पूछ जाती है, बहुत बेसिक चीजें पूछ जाती है, ओके, क्लियर? तो मैं जो भी मुझे लगता है कि बेसिक है, थोड़ा हमें पता होता है, बट जस्ट एक फ्रेम कर रहा हूं डेफिनेशन के फॉर्म में। तो अभी तक क्या कह देगा हमने? मैं रिकॉल करूं यहाँ पे, ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल, इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम डेफिनेशन देख रहे हैं हम लोग। डेफिनेशन में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? a cannot be equal to 0 और abc is any real number। Yeah.
then that equation is known as what? Quadratic equation. Okay. What is difference between the equation and polynomial? If polynomial we take equal to 0, whatever the things become, that thing is known as what? Equation. Okay. Clear? ठीक है. Okay. ये भी आपको clear हो चुका होगा. Okay. सर मुझे कंसेप्ट नहीं समझा. कौन सा वाला बच्चा है? सर ये जो आपने अभी सिखाया ना, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया मैंने कुछ ऐसा. मतलब थ्योरी जो C था is equal elaborate किया एक अलग वे से बता. अच्छा फिर भी still क्या कौन सा पार्ट नहीं समझा बच्चे? मुझे एक स्पेसिफिक पूछो ना कुछ कभी मैं समझ पाऊंगा. सर वो आपने वहां पे लिया ना C is equal to 0 वाला. अच्छा ये अरे सिंपल है. अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? आपके लिए क्या उसका मीनिंग बनता है? पहले वो बताओ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके. गलत भी हो असम्पशन कोई बात नहीं. क्वाड्रेटिक क्वाड्रा क्या होता है? 2. राइट ना? हाँ. जो भी इक्वेशन है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए. 2. इतना तो बात क्लियर है? पक्का? श्योर? ओके. तो अभी देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा रहा हूँ. एक सिंपल. ओके. ओके. मैं यहाँ पे इक्वेशन ले रहा हूँ. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0. तीनों इक्वेशन कुछ देखो. ओके. एंड दिस इज 5x स्क्वायर इक्वल टू 0. आप इस तीनों इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे क्या? आपको क्या लगता है? Yes. जस्ट यस और नो. पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. Yes, sir. अच्छा सेकंड वाला आपको लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes, sir. अच्छा थर्ड वाला आपको लगता है क्वाड्रेटिक Yes. इक्वेशन है? Yes. पक्का? श्योर? अब देखिए राइट. आप यहाँ पे कंपेयर करते हो इसके साथ ओके ना. यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं है? लास्ट कांस्टेंट टर्म नहीं है ना. मतलब c का वैल्यू इस इक्वेशन में है क्या? नहीं है. नहीं है. नहीं है सर. C0 still that equation is what? Quadratic equation. हाँ. अभी समझा? यस सर. यहाँ पे क्या केस बनता है? आपका b भी इक्वल टू 0 आया और c इक्वल टू भी 0 आया. Still that equation is known as what? Quadratic equation. पर कंडीशंस क्या होता है? क्वाड्रेटिक में स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या है? आपका a का वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ओके. अभी समझा? यस सर. पक्का ना? तो बस ऐसा मतलब अभी हाँ, कोर्स सर, में करना पड़ेगा मुझे, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं. ओके फाइन. चलो ठीक है. ओके क्या आपने जो कॉन्सेप्ट देखा है बच्चों लोग, बस मैं उसमें डिटेल वाला पार्ट में उसमें ये कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, कंडक्ट कर रहा हूँ. दैट्स इट. नथिंग मोर देन दैट. ओके. ये तो आपको पता है. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशंस और द सॉल्यूशन. ओके क्या? ओके. अभी देखिए मोस्टली मतलब आपको मैं सिर्फ एक ये बताना चाहता हूं मैं आपको. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है आपका? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अब देखिए मैं सिर्फ आपको आपके एक चीज से समझा देता हूं मैं. ओके. y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. मुझे आपको बताना चाहिए. चलो मैं एक बार चलो ये
देखते हैं हम लोग, वो ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर बता दूंगा, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा तो उसमें कोई फिर मजा नहीं आएगा। ओके चलो ठीक है। अच्छा फाइन, एक काम करते हैं। ओके हम एक सिंपल लॉजिकली चीज आपको भी पता है राइट, मुझे भी पता है, बट हम उसके ऊपर एक काम करते हैं। ओके इक्वेशंस आपके पास होता है, इट इज ax square plus bx plus c is equal to 0। ओके राइट, एंड एक बहुत ही कुछ अलग ही है ना, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय d and b square minus 4ac, राइट क्लियर? Yes. ओके अब एक काम करते हैं, मैं कुछ ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ओके वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूं, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके राइट, अब मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, ओके ना? क्या 5 0 माइनस 3 0 और 0, इसका मीनिंग क्या है? ये 0 है भाई, ये नेगेटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव है। Positive. ओके ना? राइट Yes. देखो, जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो आप उसे क्या कहोगे? नॉट Not रियल real. कहोगे, नॉट रियल राइट। कभी कभी उसको इमेजिनरी भी कहा जाता है, Yes, sir. इमेजिनरी। ओके आपको 11th स्टैंडर्ड में होगा इमेजिनरी। ओके अभी नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? Complex. कॉम्प्लेक्स रूट कहा जाता है उसे। ओके नॉट रियल। ओके अब उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना, पॉजिटिव एंड जीरो, दोनों भी रियल होते हैं। क्या होते हैं? Real. रियल, दोनों भी क्या है? Real रियल। होते हैं. एंड And equal and unequal. Equal. इक्वल एंड अनइक्वल। Unequal. समझा? Yes, sir. राइट मैंने देखो, नेगेटिव होगा तो नॉट रियल, नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव एंड जीरो इक्वल टू होगा तो दोनों भी क्या रहेगा? रियल रहेगा। बट इक्वल टू जीरो होगा तो वी से ओ इट इज इक्वल, नहीं होगा जीरो तो अनइक्वल। क्लियर? स्टेटस समझ में आ चुका आपको ये? राइट मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली समझाया मैंने एग्जांपल देके, राइट ना? एक टेबुलर फॉर्म में ही समझा दिया, ठीक है? ओके देन इसके बाद let alpha and beta are the roots. Sum of the roots क्या आता है? Alpha plus beta minus b by a, and product of roots क्या आता है? c upon a। हाँ जी यस या हेलो बच्चों लोग? Yes. Okay, yeah, clear? Okay, now, okay, see, when you're dealing with this kind of sums now, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए। Okay, tell me what is alpha minus beta the whole square? What is equal to this? ये क्या equal to आएगा? Alpha minus beta whole square, alpha square, Alpha square. okay, Alpha square minus 2 alpha beta plus beta square, okay, plus beta. yes, okay, this is product, right? Now we're talking about the difference means what? Difference between two roots, okay? अब देखिए यहाँ पे, अब alpha square plus beta square है, what is alpha plus beta the whole square? Alpha square beta square Alpha to square alpha plus beta. 2 Alpha beta beta ना? square. Yeah. ओके मैं सिर्फ रीअरेंज किया यहाँ पे, ओके लुक किया मैंने, रीअरेंज किया है फर्स्ट ये और ये लास्ट में। नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं यहाँ पे प्लस टू अल्फा बीटा करता हूँ, माइनस टू अल्फा बीटा करता हूँ, ओके दोनों भी कैंसल, ओरिजिनल सम एज इट इज, एंड दिस माइनस टू अल्फा बीटा एज इट इज, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू दिस होल स्क्वायर एंड माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर व्हिच गिव्स यू व्हाट? Alpha plus beta whole square minus 4 alpha into beta.
आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ओके, देखिए आपको दिया जाएगा सम ऑफ द रूट्स दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ओके डिफरेंस फाइंड करो, या डिफरेंस दिया जाएगा, प्रोडक्ट दिया जाएगा और सम फाइंड करने का जाएगा, या आपको तीनों में से कोई भी दो एंटिटीज आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा फाइंड थर्ड वन, फाइंड थर्ड वन। तभी हमें ये फॉर्मूला हमें बहुत तरीके से यूज करना है और पूछा जाएगा ऐसे ना ऐसे क्वेश्चन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है, ओके राइट। अच्छा ओके फाइन, आफ्टर दैट to obtain the quadratic equation from this, to obtain quadratic equation, x square minus x into alpha plus beta plus alpha into beta which is equal to 0. quadratic equation फॉर्म करना है आपको, या आपको सपोज आपको दिया जाएगा सम दिया और अल्फा बीटा दिया, बस कह दिया चलो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्म सीधा सीधा x square minus x into alpha beta plus alpha into beta which is equal to what, 0. Is that clear? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहाँ से मिला? कौन से? ये लास्ट वाला अल्फा बीटा वाला? ये वाला? ये नहीं सर उसके नीचे वाला, हाँ ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे ये तो है, पहले से था, हमने पढ़ा था। अब अच्छा तो वही है क्या ax स्क्वायर प्लस bx वाला? अरे आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, देखिए आपको मैं क्या बता, देखो मैं वन बाय वन समझ मैं आपको इसकी सीक्वेंस समझा दे रहा हूँ। ओके फर्स्ट मैंने क्या किया, आपको जो आपने पढ़ा है, जो आपको पता है सब उसमें टर्मिनोलॉजी, उस टर्मिनोलॉजी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके। देन उसके बाद वो व्हाट यू मीन बाय रूट, वो मीनिंग आपको समझा दिया। देन उसके बाद हमने क्या देखा, डिस्क्रिमिनेंट का नेचर देखा, वैल्यूज दिया, पॉजिटिव रहा तो क्या आपका रियल, इक्वल टू 0 रहा तो रियल, बट इक्वल टू 0 में इक्वल और उसमें अनइक्वल। नेगेटिव हुआ तो उसे क्या कहा जाएगा, एक तो कॉम्प्लेक्स रूट कहा जाएगा उसे, या नॉट रियल, आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं है, राइट ना, फिर भी रहने दीजिए शब्द ये आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स, ओके ना, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा नंबर हो जाता है, क्या हो जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपको 11th में है कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके क्या, तो वो वहां पे है, तो उसके बारे में हम देखने वाले, ठीक है ना, क्लियर, ओके। एंड आफ्टर दैट ये फॉर्मूलास, मैंने जब रूट्स की बात की तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये आपके पास गिवन होगा, तो आपको ये फॉर्मूला डिराइव मैंने करके आपको बता दिया, राइट। इसमें 3 एंटिटीज है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। अब पता है ना, वो दिए जाते क्वेश्चंस, दिस रूट 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स दिस अदर रूट, ऐसे कुछ होते हैं ना क्वेश्चंस कंडीशंस वाले, तो उसमें सॉल्व करने के लिए आपको हम यूज करते हैं, उसमें कहा जाता है आइदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, या आपको फेवरेट उनका k होता है, राइट ना, इंस्टेड ऑफ a b c वो k, ठीक है ना, तो वो है, राइट। सपोज वी हैव अल्फा, वी हैव द रूट्स एंड दे सेड चलो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ये होता है x square is equal to minus x alpha plus beta plus alpha into beta which is equal to 0. Is that clear? Yes. अच्छा फाइन, वन मोर, आपको मैं और कुछ चीजें देता हूँ यहाँ पे, ओके। लुक, इसके साथ ना बहुत प्ले किया जाता है, मतलब ये वाला चीज के साथ, ओके ना, राइट, ठीक है। अब देखिए आपको पता होता है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन डिराइव 2 थिंग्स, कौन सा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हियर सपोज इफ वी अज्यूम अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा आर roots, then sum of the roots is what, minus b by a, and product of root is what, c by a. C by A. ये तो हमें बहुत क्लियर पता है, राइट ना, बट यू नो पता है क्या आपको ना, ये चीज है, ये ध्यान में रखिए, ओके। आपको और एक दिया जाता है, फाइंड द वैल्यू किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या कहा जाता है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब वो कैसे फाइंड होता है, सिंपल Sir, alpha. Yes, sir. Alpha plus beta. अब ये कैसे आया, देखिए लर्न मत करो, मैं समझाता हूँ आपको, सिंपल।
एक्सपांड करो इसे, एक्सपांड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा, दोनों कैंसिल, बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, राइट, क्या, राइट। आफ्टर दैट आपको ये एक्सपांड करके दिया जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं इन लोग के, बहुत फेवरेट होते हैं। अच्छा, ओके, चलो एक काम करते हैं, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, राइट, क्या चलो, Yes. क्लियर, ओके ओके ओके। अब एक काम करते हैं, ओके, मेरे क्या है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है ना, ये और ये मेरे पास है, राइट ना, चलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट ना। अब मुझे ये दो नंबर्स चाहिए, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये ऐड कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करो, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ओके। तो ये पार्ट क्या बन जाएगा आपका, दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस, कॉमन क्या आएगा इसमें से 3 आएगा, और क्या आएगा, अल्फा और बीटा आएगा, राइट ना, ये माइनस है, माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 अल्फा बीटा, ओके, क्लियर, समझ में आ चुका आपको कैसे डिराइव हुआ, यस और नो, राइट। सो वी हैव अल्फा क्यूब, Yes. बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा and into alpha plus beta, okay, is that clear बच्चों लोग, Yes. कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी इसमें किसी को, No, sir. ओके फाइन। देखिए आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो पूछने का तरीका देखो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ओके ना, सी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, ओके, ये ऐसा कुछ भी दिया जाता है, ओके ना। सी इसका मीन ये क्या है आपका, पॉजिटिव, सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट में करो ना। एक मिनट में यहाँ पे आता हूँ, ये आपने स्क्रीनशॉट दिया इफ यू नीड इट, देखिए इक्वल टू के साथ ये जब ऐसा इनइक्वालिटीज आता है ना, उसके साथ बहुत गड़बड़ हो जाता है, यू नो। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ओके। अभी देखिए सिंपल सा थॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर रियल लाइन, रियल लाइन के सिंबल्स क्या है, Yes. राइट, बी स्क्वायर माइनस लेस देन 0, लेस देन मतलब क्या आएगा तब, नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इक्वल टू 0 ही है, ये दोनों क्या हो सकता है, रियल, Yes. ये क्या है, Not real. क्या है, इक्वल, हाँ, real and unequal. अनइक्वल, ठीक है, कुछ ऐसा भी दिया जाता है तो हमेशा प्रॉपर देखो क्या दिया कैसे, ओके, क्लियर, राइट, ओके। अभी इसके बाद और हमें क्या हो सकता है, हमें क्या मिल सकता है, ओके, अल्फा प्लस बीटा तो हो गया। अच्छा ठीक है, अभी हम अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है ना। अच्छा फाइन, आप लोग का रूट के साथ कैसे इक्वेशन है, रूट ए, रूट बी, रूट सी, राइट, उसको लेके आपके रिलेशन कैसा है, मतलब आपको देखते ही क्या कैसा समझ आ जाता है क्या कुछ चीज है, मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। देखिए हम जिस चीज से ज्यादा हम लोग पैनिक हो जाते हैं ना,
उसी तरह की कुछ क्वेश्चन हमें हमेशा दिए जाते हैं, राइट? मैं आपको समझा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, √5x² माइनस √5x प्लस √5 इक्वल टू 0। ओके, ये कुछ इस तरह से किया है। अभी वो आपको x भी नहीं देंगे, पता है क्या? आपने क्या पढ़ा है, और ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x देखा है ना, वो हमेशा यहाँ पे वेरिएबल चेंज करें, वो ऐसे भी दे सकते हैं m² और m। हमें आदत नहीं होती, हम x देखा जाता है। अब ऐसा then पूछेंगे या इसका नेचर क्या है, ओके? तो a का वैल्यू क्या, √5, b का वैल्यू क्या, माइनस √5, एंड c का वैल्यू क्या, √5। b² माइनस, देखो बच्चे लोग कहाँ पे स्टक हो जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पे क्या बताया गया, √5 पे ज्यादा उनका ध्यान जाता है, उस वेरिएबल के ऊपर नहीं जाता। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब रिकॉग्नाइज करते हो, इमीडिएटली इन अ फर्स्ट ग्लांस x होगा तो x² दिखा दो, राइट ना? बस उसी में वो नहीं देंगे आपको, m² देंगे, p² देंगे, t² भी दे सकते, q भी दिया जाएगा, राइट ना? क्लियर ना? x नहीं दिया जाएगा इमीडिएटली, ये रूट है सब, ये ऐसा तो सिंपल है, माइनस √5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √5 इंटू √5, ये क्या आएगा, माइनस एंड रिमूव 5 आ गया, राइट ना? 20 आ जाएगा सर, 4 इंटू 5, 5 माइनस 20 आ गया, -6 मतलब क्या, 15। समझा? यस। क्लियर? अभी देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, देखिए आपको मैं समझाता हूँ, मैं आपको एक हम कल तो एमसीक्यूज देखने ही वाले हैं, ओके? क्या, पर आपको मैं सिर्फ एक डेमो बता रहा हूँ, ओके? लुक, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स? रूट्स का मतलब क्या होता है? टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स? रूट ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, टेल मी फटाफट। हे बच्चों लोग, हेलो, हेलो, what happened? Yeah, look, what is roots? Roots mean the value of the variable. Roots means value of the variable. Okay, na? Some of the roots of the equation is 2. It means it is a value of x. It is a value of x. Statement का meaning समझते लोग, okay? So substitute 2 x का value 2 over here, 2 square plus 2 minus 5 0, 4 plus minus 5 equal to 0. So 2m minus 1 0, 2m is equal to 1, m is equal to 1 upon 2. So we got the value of m. Okay, clear? यस। चलो, see you tomorrow बच्चों लोग। मेरे ख्याल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जितना भी इसमें है तो स्किप हो गया रहेगा, तो I will cover tomorrow. Okay, चलो, bye, see you.